أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا جو سبق ہے وہ رکوع 32 اور رکوع 33 ہے سورہ بقرہ کا۔ اس کے اندر جو واقعہ سب سے مشہور واقعہ اس میں ہے طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا صرف اشارہ کیا گیا ہے اس واقعے کی طرف۔ تو رکوع 32 میں دو واقعے کی طرف، ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ایک واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ رکوع 33 میں اسی دوسرے واقعے کو، یعنی طالوت جالوت کا جو واقعہ ہے، اسی کو کنٹینیو کیا گیا ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کو، اس واقعے کو ثبوت بنا کے، اس واقعے کو دلیل بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے درمیان درجے کو بیان کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بیان کی ہے، جو ان تمام واقعات سے جو بات نکل رہی تھی اسی حکمت کو بیان کیا ہے کہ لوگ جنگ کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ دو واقعات ہیں اس میں۔ ایک تو اشارتاً بیان کیا گیا ہے، یعنی اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی تفصیل نہیں پیش کی گئی ہے۔ اب اس کو دیکھا جائے کہ ابھی تک جو مضمون چل رہا تھا اس یعنی رکوع 31 تک، وہ مضمون تھا احکام، اس کے اندر حکم بیان کیا جا رہا تھا، احکام بیان کیے جا رہے تھے۔ اور احکام جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک احکام جو ہوتے ہیں وہ انفرادی ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے، اور کچھ احکام جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اجتماعی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے احکام میں شروعات میں جیسے صبر کرنا، اس طرح کے جو احکام تھے، نماز کے، روزے کے، یہ احکام بیان کیے جو کہ ایک طرح سے انفرادی احکام ہے، ہر شخص اس کو الگ الگ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد احکام بیان کیے خاندان کے، جو کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کا، یعنی اجتماعی احکام میں جو چھوٹا یونٹ ہے جس کو آپ خاندان کہتے ہیں، گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں بیوی اور شوہر کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے وصیت کے جو احکام ہیں، جو ایک شخص کا انتقال ہونے والا ہو تو وہ اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو وصیت کر کے جائے گا اس کو بیان کیا گیا، اور میاں بیوی کے رشتوں کو بیان کیا گیا، اور ان کے درمیان اگر طلاق ہو جائے تو اس احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو یہ اجتماعی احکام کا کچھ حصہ بیان کیا گیا، اور ان اجتماعی احکام کو بیان کیا گیا جو فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاندان جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا چھوٹا یونٹ ہے، اور جو بڑا یونٹ ہے، یعنی جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں، پوری سوسائٹی جو ہے اس کے احکامات کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اور اس میں جو احکام ہے اس میں احکام حق اور باطل کے ہیں، یعنی کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ تو جو چیز حق ہوتی ہے اس کو اس کے خلاف باطل جب کھڑا ہوتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے جو غلط نظریات کو پھیلاتا ہے، تو حق کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ باطل کے خلاف جنگ کرے، باطل کو ختم کرے۔ تو یہ جو احکام ہیں اس خاص حکم سے تعلق رکھتے ہیں جو باطل کے خلاف حق کھڑا ہو کر کے ان کے خلاف لڑتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر جو احکام ہیں وہ جہاد سے متعلق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب جو جہاد ہے اس کے اندر انسان کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، یعنی انسان کو اپنے چیزوں کا خرچ اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ جہاد کے اندر انسان
اسباب जंग जो होते हैं, जंग के जो सामान होते हैं, उसको लेना ज़रूरी होता है। तो इस तरह उसको माल खर्च करना पड़ता है, और चूँकि वो सफ़र करना पड़ता है, तो सफ़र में भी पैसा खर्च होता है। और इसी तरीके से जिहाद में ये इम्कान होता है कि एक शख्स जो जिहाद करने जा रहा हो, उसकी जान भी जा सकती है। तो जिहाद में 2 चीज़ों को रिस्क में डालना होता है, जान को और माल को। तो अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं कि कोई शख्स अगर ये सोचता है कि कि अगर कोई जिहाद में जाता है, तो उसकी वजह से वो मर जाता है, या उसकी वजह से उसके माल में कमी आ जाती है, ऐसा सोचना सही नहीं है। और इसके लिए अल्लाह ताला यहाँ पर 2 वाक़यात को पेश कर रहे हैं। पहले वाक़यात को अल्लाह ताला पेश करते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो अपने घरों में हज़ारों की तादाद में निकल खड़े हुए, किस लिए निकल खड़े हुए? मौत के खौफ से। यानी मौत से बचने के लिए वो घर से निकल भागे, हालाँकि वो हज़ारों की तादाद में थे। यानी उन पर जिहाद को फ़र्ज़ किया गया, और वो जिहाद करना नहीं चाहते थे, वो बचना नहीं चाहते थे, और वो घर से निकल कर भाग गए। तो जब वो भाग कर के एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ उनको लगा कि हम अपनी एक महफ़ूज़ जगह पहुँच गए हैं, जो रिवायतों में बताया गया है कि 2 पहाड़ों के दरमियान जब वो पहुँच गए, उनको ये अंदेशा ना रहा कि दुश्मन उन पे हमला नहीं कर सकेगा। तो वहाँ पे वो जब ख़ेमा-ज़न हो गए, वहाँ पे रुक गए, आराम से रहने लगे, तो अल्लाह ताला ने कहा, मूतू यानी मर जाओ। अल्लाह ने उन सबको मौत का हुक्म दे दिया और सब के सब मर गए। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, जैसा कि बताया गया है रिवायतों में। तो 2 फरिश्ते दोनों पहाड़ों की इस चोटियों पे खड़े होके उन्होंने एक ऐसी आवाज़ निकाली कि जिसके सुनते ही वो सारे के सारे मर गए। फिर अल्लाह ताला के कोई नबी थे, जो वहाँ से उनका गुज़र हुआ, उन्होंने देखा कि वहाँ पे लाश के ढेर पड़े हुए हैं। तो उनको इस चीज़ को समझने की ख़्वाहिश पैदा हुई, तो अल्लाह की तरफ से उनको ये वाक़या बयान किया गया। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ किया कि इनको दोबारा ज़िंदा कर दीजिए, तो अल्लाह ने उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला लोगों पे बड़ा फ़ज़्ल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं अदा करते हैं। यानी अल्लाह ताला किसी को ये चीज़ें दिखाते हैं, और उसके बावजूद लोग अल्लाह ताला की भेजी हुई नसीहत से को कबूल नहीं करते हैं, और कोई अ, इन तमाम चीज़ों को उस तरह से समझते नहीं हैं जैसा कि उनको समझना चाहिए। अब इस वाक़ये के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जंग करो, और जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को सुनने वाला, जानने वाला है। यानी जब तुमको ये बात पता चल जाए कि अगर आप मौत के खौफ से भाग कर के किसी भी महफ़ूज़ जगह पे भी पहुँच जाएँगे, तो आप इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मौत नहीं आएगी। यानी मौत और हयात जो है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है, और जंग हो गई या कोई और चीज़ हो गई, ये तमाम चीज़ें ये सबब बनती हैं। अल्लाह ताला किसी और सबब से भी तुम्हें मौत दे सकता है। तो अल्लाह के रास्ते में जब ऐसा मौका आ जाए, तो उस वक़्त आपको मौत से डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि जब ऐसा मौका आए, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके माल में कमी वाक़ई हो जाएगी। क्योंकि माल में कमी वाक़ई होना वो ज़ाहिरी तौर पर है। यानी ज़ाहिरी तौर पे आपके माल में कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला उस माल को बढ़ा-चढ़ा करके आपको देने वाला है। यानी हो सकता है कि उस माल को खर्च करने के बाद आप किसी पे गालिब आ जाएँ, और आपको बेतहाशा माल दुनिया में ही मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि उस माल का का जो बदला है वो दुनिया में ना मिले, लेकिन आखिरत में आपको उस माल के बदले बेतहाशा चीज़ें मिलें। आपको उसके बदले बहुत सारी, यानी जहाँ तक बताया गया है वो 700 गुना उसका आपको बदला मिल जाए। आगे चल के जो तीसरे पारे में एक आयत आ रही है जिसमें अल्लाह ताला उसको एक माल को जो लोग खर्च करते हैं, उसको अल्लाह ताला ने एक ऐसी बाली से तशबीह दी है कि एक दाने से 7 बालियाँ निकले, और हर बालियों में से 100 दाने निकले। तो खर्च करने वाले ने 1 दाना खर्च किया, और उस दाने ने 7 बालियाँ पैदा की, और हर बालियों से 100-100 दाने निकले।
तो 700 हो गए। तो यानी एक शख्स ने जो एक एक यूनिट खर्च किया अपने माल का, वो यूनिट 700 होकर के उसको वापस मिलेगा। तो अल्लाह ताला उसी को फरमाते हैं कि कौन है जो अल्लाह ताला को बेहतरीन कर्ज दे, तो उसके बदले अल्लाह ताला उस माल को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दे। यानी अल्लाह ताला जो माल है उसको बेतहाशा बढ़ा के उसको वापस करे। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माल की हकीकत सिर्फ़ इतनी ही है कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं माली फ़राखी देते हैं, वुसअत दे देते हैं, और जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला माल में तंगी पैदा कर देते हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के ही हाथ में हैं, मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, माल का बढ़ना घटना अल्लाह के हाथ में है, तो ना तो अपनी जान को रिस्क में डालने से डरना चाहिए, ना ही अपने माल को रिस्क में डालने से डरना चाहिए। तो अल्लाह ताला इस वाक़ये और इसके नतीजे में जो चीज़ें पैदा होती हैं उसको बयान किया। लेकिन अगर आप ये वाक़या जो है इसके बारे में दूसरी रिवायतें भी हैं कि एक रिवायत ये है कि उनके ऊपर कोई वबा आ गई थी। जैसे आजकल हम लोगों के यहाँ क कोरोना आ गया है, इसी तरीके से कोई फैलने वाली वबा आ गई थी और वो वबा वहाँ पर फैल रही थी, वो लोग डर गए। उनको लगा कि अगर हम सब यहाँ पे रहेंगे अपनी बस्ती में, तो हम सब के सब मर जाएँगे। तो वो मौत से बचने के लिए वो लोग भाग करके उन 2 पहाड़ों के बीच एक मैदान में जा कर के उन्होंने अपने ख़ेमे लगा लिए और उनको लगा कि हम चूँकि वबा से भाग गए हैं, तो हम बच जाएँगे। तो लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने उन सबको फ़ौरन ही मौत दे दी। तो ये दूसरी रिवायत थी, इसको मैंने बयान कर दिया। इसको हम लोग देख लेते हैं। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से मौत के खौफ से, मौत से बचने के लिए निकल गए, खरजू निकल गए, वहुम उलूफुन हालाँकि वो हज़ारों की तादाद में थे। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू तो अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, सुम्मा अहयाहुम फिर अल्लाह ने उनको दोबारा ज़िंदा किया। इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नास अल्लाह ताला लोगों पर फ़ज़्ल करने वाले हैं। वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। यानी जब अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मौत के सबब के तौर पे या तो वबा डाल दी थी या उनके ऊपर जिहाद को फ़र्ज़ कर दिया गया था, क़िताल को फ़र्ज़ कर दिया गया था और उनको लगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, वो उनके मौत का सबब बन जाएँगी और अगर हम भाग जाएँगे तो इस मौत से बच जाएँगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह आप मौत से बच नहीं सकते क्योंकि मौत और हयात जो है वो अल्लाह के कब्ज़े में है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ऐसी बात है तो वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम अल्लाह के रास्ते में जंग करो और जान लो कि अल्लाह ताला हर बात को सुनने वाला है, जानने वाला है। यानी जब ये तमाम चीज़ें मौत और हयात जो है वो अल्लाह के ही कब्ज़े में है, तो आपको इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये सोचता है कि अगर जंग में जाएगा और उसको माल क खर्च करेगा या जंग में जाने वालों की माली मदद करेगा तो उसके माल में कमी हो जाएगी और वो तंगदस्त हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, तो ये सोचना गलत है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। मन ज़ल्लज़ी कौन है वो शख्स जो अल्लाह ताला को बेहतरीन कर्ज़ दे। तो अल्लाह ताला उसके कर्ज़ को उसके लिए कई गुना ज़्यादा बढ़ा दे। अज़आफ़न कसीरा कई गुना ज़्यादा बढ़ा दे युज़ाइफ़हु। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु अल्लाह ताला तंगी पैदा करते हैं और अल्लाह ही फराखी पैदा करते हैं। व इलैहि तुरजऊन और उसकी ही तरफ तुमको लौटाया जाएगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो शख्स खर्च करता है माल को अल्लाह के रास्ते में, उसको अल्लाह ताला ने कर्ज़ से ताबीर फ़रमाया है। कर्ज़ कहते हैं उधार को। तो जिस तरह कोई शख्स उधार देता है तो उसका जो वापस आना ज़रूरी होता है, यानी जिस शख्स को भी आप उधार देंगे इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसा चला गया। वो पैसा वापस आपके पास आने वाला होता है और इस बात का आपको यकीन होता है।
तो इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, उसका वापस मिलना यकीनी है। और सिर्फ ये नहीं कि वो जो आपने खर्च किया है वही वापस मिल जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके उसको वापस करेंगे। तो कभी-कभी ये होता है कि वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, अल्लाह ताला ही तंगी पैदा करते हैं, अल्लाह ताला ही फ़राख़ी पैदा करते हैं। तो ये होगा कि आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में ही आपको बेतहाशा फ़राख़ी अता कर दी। तो वही चीज़ जो आपने खर्च की थी वो बेतहाशा होकर के आपके पास वापस आ गई। व इलैहि तुरजऊन, और उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी अगर ज़िंदगी में आपको वो चीज़ें कई गुना होकर वापस नहीं आई हैं, तो आखिरत में तो बिल यकीन, यकीनी तौर पे आपको वो चीज़ें बढ़ा-चढ़ा कर दी जाएँगी। यानी आपने कुछ खर्च किया होगा, उसके बदले आपको जन्नत मिल रही होगी, बागात और महल्लात मिल रहे होंगे। यानी इसी के ज़िम्न में एक वाक़या है तफ़सीर में कि हज़रत अबू दहदाह जो थे, उन्होंने जब ये आयत सुनी, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि क्या सच में अल्लाह ताला हमसे कर्ज़ चाहता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल अल्लाह ताला कर्ज़ तुमसे माँगता है। तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ रख के कहा कि आप गवाह रहिए, मैंने अपने दोनों बाग अल्लाह के रास्ते में कर्ज़ दे दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम एक बाग अपने घर वालों के खर्च के लिए रखो और एक बाग अपने लिए रखो। तो उन्होंने कहा कि आप गवाह रहिए कि मेरा जो सबसे बेहतरीन खजूरों वाला बाग है, जिसमें 600 दरख्त खजूर के हैं, वो मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कितनी ही बेहतरीन, मानी आखिरत में कितनी ही बेहतरीन उनके खजूर के दरख्त मैं देख रहा हूँ और बड़े-बड़े महल्लात उनके देख रहा हूँ, जो इनको मिलने वाले हैं। तो ये वाक़या इसके ज़िम्न में ज़िक्र किया गया है। अब दूसरा जो वाक़या है, वो है तालूत और जालूत का वाक़या। ये वाक़या इस तरह है कि बनी इसराइल की जब शुरुआत हुई, यानी हम सब जानते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की से बनी इसराइल की इब्तिदा होती है। इब्तिदा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो लोग करते हैं, अपने बाप को कहते हैं कि वो हमारे बाप जो हैं, वो हज़रत इब्राहीम हैं। बहरहाल हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक हैं और हज़रत इसहाक के बेटे जो हैं, वो हज़रत याकूब हैं और याकूब अलैहिस्सलाम का नाम जो था वो इसराइल था, तो उन्हीं के बेटों को बनी इसराइल कहते हैं, यानी इसराइल की औलाद। तो शुरुआत में बनी इसराइल की जो क़ियादत करते थे, वो नबी होते थे, यानी वो ही नबी जो होते थे, वही सरदार भी होते थे और वही क़ियादत यानी लीडर भी होते थे। तो इसी तरह से हज़रत याकूब जो थे, वो अपने अपने ज़माने के लीडर थे, हज़रत यूसुफ़ लीडर थे, जो उनके लड़के हैं। और फिर इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके लीडर बना के भेजे गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में वो लोग मिस्र से निकल करके फ़लस्तीन जो जा रहे थे, तो रास्ते में वो चूँकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इनकार किया था, उसकी पादाश में, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको 40 साल के लिए भटका दिया था। तो उसी जो भटकने का जो ज़माना है, इसी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। लेकिन हज़रत यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी वो लीडर रह गए। तो उन्हीं की लीडरशिप में ये लोग फ़लस्तीन में दाखिल हुए और जब तक हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम रहे, तो उन्हीं के मतलब उनके रहते-रहते वो लीडर रहे, लेकिन उन्होंने इनके अंदर जो मामला, यानी 12 कबीले थे, तो इन 12 कबीलों के मामलात को मैनेज करने के लिए उन्होंने काज़ी मुकर्रर किया। यानी इसको कहा जाता है कि काज़ी जो थे, वो इनके दरमियान के जो मामलात थे, झगड़े होते थे या कोई भी मामला को सही करना होगा, उसके लिए वो उनको अहकाम बताया करते थे। तो उनके अंदर पैगंबर भी आते थे और काज़ी भी होते थे, कभी-कभी पैगंबर जो है वही काज़ी भी होते थे। तो ये ज़माना काफ़ी साल तक चला, यानी कई सौ साल तक चला और ये जो ज़माना चला, इसको कहते हैं क़ुज़ात का ज़माना, यानी काज़ियों का ज़माना। यानी ये लोग जो हैं काज़ी उनके ज़माने में होते थे, तो इनको कहा जाता था काज़ियों का ज़माना। तो
چونکہ اس زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا تھا ان کے پاس، اور یہ بٹے ہوئے تھے، یعنی 12 اس میں بٹ گئے تھے 12 قبیلوں میں، اور ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ بادشاہ کے ہونے سے جو مضبوطی ہوتی ہے قوم میں وہ ان کو نصیب نہیں تھی۔ تو آس پاس کے جو کافر قومیں تھیں وہ ان پہ حملہ کرتی تھیں اور ان کو پریشان کرتی تھیں، اور آخر آخر یہ ہوا کہ جو جالوت تھا اس کی قوم نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور ان کے ام، تابوت سکینہ جو تھا، تابوت ان کے پاس ایک صندوق تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامان رکھے ہوئے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، اس صندوق کو لے کر وہ چلے گئے، اور بنی اسرائیل اس صندوق کو بہت مبارک مانتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس جنگ میں وہ صندوق لے کے جاتے تھے وہ جنگ ضرور جیت جاتے تھے، بہرحال اس صندوق کو ہی لے کر وہ سب چلے گئے۔ تو بنی اسرائیل، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل پہ بہت سارا ظلم ہو چکا تھا، یعنی ان پہ حملہ ہو چکا تھا، حملہ ہونے کے بعد ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے لوگوں کو قید کر کے لے جایا گیا۔ تو اس لگاتار اس پریشانیوں سے گزر کے یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو یہ اپنے نبی کے پاس آئے جو کہ آخری قاضی کہے جاتے ہیں، حضرت شموئیل علیہ السلام۔ تو حضرت شموئیل کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جو تاریخ ہے، تمہارا جو رویہ ہے رہا ہے، اس سے کچھ یہ توقع تو کی جا سکتی ہے، یعنی اس بات کا پورا امکان ہے کہ اگر تم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور تم پر جنگ کے احکام نازل ہو جائیں، فرض کر دیا جائے، تو تم کیا کرو گے؟ اس بادشاہ کی بات نہیں مانو گے اور تم جنگ سے بھاگ جاؤ گے۔ حالانکہ تم ابھی کہہ رہے ہو کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، لیکن تم بادشاہ جب مقرر ہو جائے گا تو تم بھاگ جاؤ گے۔ تو انہوں نے مطلب قسمیں وعدے کیے کہ ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، اور انہوں نے وجوہات بھی پیش کی کہ جب ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں کہیں اور ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے، تو جب ہم تو مجبور ہیں لڑنے کے لیے، تو ہم اس صورت میں ہم کیوں نہیں ہم بادشاہ کی بات مانیں گے اور جنگ کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ وہ یہ کہ طالوت جو تھے وہ ایک چرواہے تھے، اور وہ اپنے جانوروں کو چراتے چراتے اس علاقے میں پہنچے جہاں پر حضرت شموئیل علیہ السلام رہتے تھے۔ تو ان کو شوق ہوا کہ یہ جو نبی ہیں، جو قاضی بھی ہیں، ان سے ملاقات کی جائے۔ تو جب وہ ان سے ملنے گئے تو حضرت شموئیل نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو جب حضرت شموئیل نے طالوت کو بادشاہ کے لیے مقرر کیا، تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو اپنا سمجھتے تھے، مطلب بڑا سمجھتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہے کو بادشاہ بنا دیا گیا، تو انہیں بڑا خراب لگا۔ انہوں نے کہا کہ طالوت کو ہم پر بادشاہت کیسے حاصل ہو سکتی؟ انا یکون لہ الملک ونحن احق بالملک، ہم تو اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ اور اس کے لیے یعنی وہ اس طرح سے کہ طالوت جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے مطلب اس خاندان سے نہیں آتے تھے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ اس میں بادشاہت ہے۔ اور دوسری وجہ انہوں نے بیان کی کہ ولم یؤت سعۃ من المال، اور طالوت جو ہیں وہ مالدار بھی نہیں ہیں، یعنی جو شخص مالدار بھی نہیں ہو، جس کا نسب بھی ہم سے بلند نہ ہو، بہت بڑا بلند نہ ہو، تو اس کو کیسے بادشاہت دی جا سکتی ہے؟ تو حضرت شموئیل نے فرمایا کہ بادشاہت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتے ہیں۔ تو ان اللہ استفاہ علیکم، اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ بنا کر کے چن لیا ہے۔ اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مال کا ہونا یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے، علم کا اور جسم کا ہونا یہ فضیلت ہے۔ یعنی ایک شخص صحت مند ہو اور ایک شخص کے پاس علم ہو، تو صحت مند اور عالم شخص وہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس کے پاس فضیلت زیادہ ہے۔ پھر وہ چونکہ مان نہیں رہے تھے، تو حضرت شموئیل نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی علامت یہ ہے
कि जो ताबूत तुमसे छीन के ले जाया गया है, अगले दिन तुम्हारे पास यानी या कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास वो खुद आ जाएगा और फरिश्ते उसको लेकर के आएंगे। और हुआ ये कि जो लोग इनसे ताबूत छीन के ले गए थे, उस कबीले में वबा फैल गई और उनको इस बात का यकीन हो गया कि ये वबा जो है वो इस ताबूत की वजह से ही फैल रही है। तो उन्होंने 2 बैलों पर उसको लाद के और अपने बस्ती से बाहर भेज दिया। फिर फरिश्तों की निगरानी में वो दोनों बैल ये ताबूत ला करके तालूत के घर के सामने छोड़ गए। तो जब बनी इसराइल ने देख लिया कि ताबूत भी आ गया, तो उन्होंने इनकी बादशाहत को मान लिया। फिर इसके बाद जब जंग फर्ज हो गई और तालूत फौज थी, जो लश्कर थी, उनको लेकर के निकले, तो उनको चूंकि पहले बता दिया गया था, यानी हजरत शमूएल ने बता दिया होगा कि आगे चल के अल्लाह ताला, उन्होंने कहा अपनी लश्करों से कि आगे चल के तुम्हारे रास्ते में एक नहर आएगी और क्योंकि तुम सफ़र कर रहे हो, गर्मी का मौसम भी है, तो तुमको प्यास भी लग रही होगी और दरिया जब आ जाएगा तो तुमको अल्लाह ताला उस दरिया के ज़रिए आज़माना चाहता है। और जो शख्स उस दरिया से पानी पी लेगा, यानी जम के पानी पी लेगा, सैराब होकर पानी पी लेगा, तो वो शख्स मेरा नहीं है, यानी वो हमारे उसका उसमें शामिल नहीं है। और जो शख्स उस दरिया से बच जाएगा, यानी या तो एकदम पानी नहीं पिएगा या पानी पिएगा तो सिर्फ एक चुल्लू भर पानी पी के लेकर वो सब्र कर लेगा, तो वो शख्स जो है वो हमारे साथ रहने वाला है। तो हुआ ये कि जब वो दरिया पर पहुंचे तो वहां पे अक्सर लोगों ने खूब जम के पानी पी लिया क्योंकि प्यास लगी हुई थी, और बहुत कम जो लोग थे जिन्होंने अपने ऊपर सब्र किया और पानी नहीं पिया। तो फिर जिन लोगों ने पानी पी लिया था, उन्होंने जब जालूत का लश्कर देखा तो वो ये बोलने लगे कि हम हमें जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं है। या ये जो आगे आयत है, इस आयत का ये भी मतलब है कि ये जो लड़ने के बाद जो लोग उतर गए थे उधर, पानी पीने के बाद जो लोग बचे हुए लोग थे, उनमें से ही लोगों ने ये बात कही बहरहाल। तो जो अक्सर लोग थे वो दरिया से इधर ही रह गए और कुछ लोग ही दरिया से पार होकर के जालूत के लश्कर के आमने सामने हुए। और वहां पर जब थोड़े से लोग जालूत के बड़े लश्कर के सामने खड़े हुए, तो उनमें से कुछ लोगों को लगने लगा कि हम इतने बड़े लश्कर से कैसे लड़ेंगे। तो उसमें से कुछ लोगों ने, जो जिनको यकीन था कि अल्लाह ताला जो है वही गालिब करते हैं, वही मदद करते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि तारीख में कई बार ऐसा हुआ है कि छोटी सी जमात ने बड़ी सी जमात को हरा दिया है। और फिर ऐसा ही हुआ, यानी तालूत की जो लश्कर ने जालूत के लश्कर को हरा दिया, और हज़रत दाऊद जो थे वो तालूत के लश्कर में शामिल थे, उन्होंने जालूत को मार के ख़त्म कर दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दाऊद को हिकमत और बादशाहत से नवाजा। और फिर अल्लाह ताला इसको आगे बताते हैं कि ये जो वाक़या था, ये लोगों के लिए एक इबरत है, एक निशानी के तौर पे है। यानी जो शख्स इस वाक़ये में गौर करेगा, उसे इससे बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, नसीहत मिलेगी। अब हम आयत का तर्जमा देख लेते हैं। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बादि मूसा, क्या तुमने बनी इसराइल के सरदारों की तरफ नहीं देखा जो मूसा के बाद थे। यानी तुम बनी इसराइल के उस जमात की तरफ नहीं देखे जो मूसा के बाद थे। इज़ क़ालू लिनबी लहुम बाअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, जब उन लोगों ने अपने नबी से कहा कि इबाअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, कि हमारे लिए कोई बादशाह मुक़र्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। तो नबी ने क्या कहा? क़ाला, उन्होंने कहा, हल आसैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू, कि तुमसे तवक्को ये क्या तुमसे ये तवक्को नहीं है कि इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कि अगर तुम पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया जाए तो अल्ला तुक़ातिलू, तुम जिहाद ही ना करो। तो क़ालू, उन लोगों ने जवाब दिया, वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, कि हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करेंगे।
اور کیوں یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے میں جہاد ہی نہ کریں۔ ہمارے پاس تو وجہ ہے اس بات کی کہ ہم لڑیں۔ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال باہر کیا گیا۔ اخرجنا ہمیں نکال دیا گیا، یعنی ہمارے پاس تو پوری وجہ ہے لڑنے کی۔ فلما کتب علیہم القتال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر سب کے سب منہ پھیر گئے۔ تولوا، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بادشاہ کے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا، تو وقال لهم نبیہم، تو ان سے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالو، تو اب ان کو یہ اعتراض ہونے لگا، قالو انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کو ہم پر بادشاہت کا حق کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ انا یکون لہ الملک علینا، کہ ہمارے اوپر اس کو بادشاہت کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، کہ ہم تو اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، یعنی نسب کے اعتبار سے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو مالی فراخی بھی نہیں دی گئی، یعنی اس کے پاس مال بھی زیادہ نہیں ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، نبی نے کہا کہ اس کو بادشاہت دینے کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بادشاہت دینے والا ہے، تو اس نے تم پر اس کو چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور جسم اور علم میں اس کو کشادگی عطا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور علم میں بڑھا کر کے تم کو دیا ہے، یعنی وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں، تم سے زیادہ جسم والے ہیں۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو اور ان کو علم اور جسم میں فراخی دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت سے نواز دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسعت دینے والا، علم والا ہے۔ اب اس کی نشانی کیا ہے بادشاہت کی؟ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ ان آیت ملک ہی، اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت، وہ صندوق آئے گا جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون کا سامان ہے۔ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سکون کا سامان ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور موسیٰ اور ہارون کے خاندان کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے بقیہ مادہ چیزیں ہیں۔ بقیتن، بقیہ مادہ چیزیں ہیں، مما ترکا، جن کو چھوڑا ہے، آل موسیٰ وآل ہارون، ہارون اور موسیٰ کے خاندان والوں نے۔ تحملہ الملائکہ، جس کو ملائکہ فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے، یعنی وہ صندوق فرشتوں کی نگرانی میں تمہارے پاس آ جائے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ پھر اس کے بعد فلما فصل طالوت بالجنود، یعنی ان لوگوں نے جب نشانی دیکھ لیا اور طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور اس کی قیادت میں وہ لوگ نکلے جنگ کے لیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت لشکروں کو لے کے، یعنی فوجوں کو لے کر کے باہر نکلے، فصل باہر نکلے، قال، تو انہوں نے کہا، یعنی نکلنے جنگ سے پہلے ہی انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ فمن شریب منہ، تو جو شخص اس نہر سے پی لے گا، فلیس منی، تو وہ میرا نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جو شخص اس سے نہیں پیے گا، فإنہ منی، تو وہ میرا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس شخص کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی بھر لے، یعنی کوئی شخص اگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی بھر کے تھوڑا سا پانی پی لیا تاکہ تسکین ہو جائے ہلکی سی، تو اس شخص کو اجازت ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سوائے ان میں سے چند کو چھوڑ کر، سوائے ان میں سے چند کو چھوڑ کر، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کو چھوڑ کر، فشربوا منہ، سب نے اس سے پانی پی لیا، یعنی چند لوگوں نے ہی اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور سب نے پی لیا۔
अच्छा, इस बात की हिकमत भी यही थी कि जब जंग का ऐलान होता है और लोग परेशान हैं, सबको अंदर जोश होता है, तो सब भीड़ की शक्ल में एक साथ हो जाते हैं। लेकिन जंग जो है वो एक सब्र का काम है, जंग लंबी भी हो सकती है और जंग के अंदर एक शख्स का यकीन, एक शख्स का सब्र जो है, वही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इसी भीड़ को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको एक नहर से आज़माया कि जो शख्स इताअत वाला होगा, जो शख्स सब्र करने वाला होगा, वो इस छोटे से आज़माइश से आराम से गुज़र जाएगा और जो शख्स अपनी इन फ़ितरी ख़्वाहिशों को ही कब्ज़ा नहीं कर पाएगा, काबू नहीं कर पाएगा, वो जंग में जाकर कैसे लड़ेगा, कैसे सब्र कर पाएगा? तो इसलिए बहुत सारे लोग अलग हो गए, सिर्फ़ थोड़े से लोग रह गए। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना मअहु वल्लज़ीना आमनू मअह, तो जब तालूत और उसके ईमान वाले साथी वल्लज़ीना आमनू मअह और उसके ईमान वाले साथी नहर के पार उतरे, जावज़ा नहर के पार उतर गए, तो क़ालू तो उन्होंने सामने देखा कि तालूत का बेतहाशा लश्कर जालूत का लश्कर उनके सामने है। तो उनको देख कर के दिल में तरद्दुद पैदा हुआ, उनको लगने लगा कि इतने बड़े लश्कर से कैसे लड़ेंगे? क़ालू उन्होंने कहा ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी कि आज हमारे पास जालूत और उसके लश्करियों से लड़ने की ताकत नहीं है। यानी इतने बड़े लश्कर से इतने कम लोग कैसे लड़ेंगे? तो उनके अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सब्र के आला दर्जे पे फ़ाइज़ थे और यकीन उनका बहुत ज़्यादा पुख्ता था। तो वो क्या कहते हैं क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, तो उन लोगों ने जिन्हें ख़याल था कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, यानी उन जिनको इस बात का यकीन था कि वो अल्लाह से मिलेंगे, उन्होंने कहा कि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह कि कितनी ही छोटी जमातों ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों को गालिब किया है। यानी बहुत सारी छोटी जमातें बड़ी-बड़ी जमातों को अ, हरा देती हैं लेकिन अल्लाह के हुक्म से। तो तुम थोड़े से हो इससे कोई मतलब नहीं है। वल्लाहु मास साबिरीन, यानी तुम सब्र करके यहाँ पे जमे रहो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के आमने-सामने हुए, तो उन्होंने एक दुआ की। क्या दुआ की? क़ालू उन लोगों ने कहा, रब्बना ऐ हमारे रब, अफ़्रिग़ अलैना सब्रन, हम पर सब्र को उड़ेल दीजिए, हम पर सब्र को डाल दीजिए। यानी एक तरह से हमको सब्र में शराबोर कर दीजिए। व थब्बित अक़दामना, और हमको साबित कदम रखिए, हमारे कदमों को जमा दीजिए, यानी हम भागने ना पाएँ, हम लड़ते रहें। वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और काफ़िर लोगों के मुकाबले हमारी मदद कीजिए। तो उसके नतीजे में क्या हुआ? फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, तो उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म से उनको हरा दिया, उनको शिकस्त दे दी। व क़तल दाऊद जालूत, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा, और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुल्क यानी बादशाहत, हिकमत और दिया, और अल्लाह ताला ने उनको वो चीज़ें सिखलाई जो अल्लाह ताला ने चाहीं। यानी अल्लाह ने जो चीज़ें चाहीं, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को सिखलाई। यानी हज़रत अल्लाह ताला ने उनको, एक आयत में है कि वअल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम, कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को जंगी लिबास तैयार करने का हुनर सिखाया, जिसको आप कहते हैं ज़िरा, जो उस वक़्त लोहे का होता था, लोग पहनते थे जंग में। तो अल्लाह ताला ने उनको उस चीज़ का हुनर सिखलाया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने उनको एक खूबसूरत तरीन आवाज़ दी कि जब वो तिलावत करते थे, तो फ़रिश्ते तो उस वक़्त परिंदे उनके साथ बैठ के अल्लाह की तस्बीह करते थे। यहाँ तक कि नहरें, पानी, पहाड़ सब तस्बीह में मगन हो जाते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो जंग है, उसकी हिकमत क्या है? वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअज़, अगर अल्लाह ताला लोगों को एक-दूसरे के ज़रिए दफ़ा नहीं करता, यानी एक के ज़रिए दूसरे को हटाता नहीं, तो लफ़सदतिल अर्ज़, तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, और अल्लाह ताला
दुनिया वालों पर बड़ा फ़ज़्ल करने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला एक को दूसरे के ज़रिए नहीं हटाता, यानी एक शख़्स ज़ालिम है जो लोगों पर ज़ुल्म कर रहा है, तो अगर अल्लाह ताला मोमिनों को भेज करके उनके ज़ालिमों को ख़त्म नहीं करता, तो ज़मीन के अंदर तो जगह-जगह फ़साद ही फैल जाता, ज़ुल्म और फ़साद का बाज़ार गर्म हो जाता। तो अल्लाह ताला की ये हिकमत है कि जब कभी कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अल्लाह ताला उसको दफ़ा करने के असबाब पैदा करते हैं। और अल्लाह ताला दुनिया जहानों पे फ़ज़्ल करने वाले हैं। और इसी फ़ज़्ल में से अल्लाह ताला की रिसालत भी है। यानी अल्लाह ताला लोगों को हिदायत के लिए नबियों को भेजते हैं जो उन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं। उसी चीज़ का तज़किरा आगे भी हो रहा है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, तिल्क आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़, ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, हम उनको आप पर ठीक-ठीक पढ़कर सुनाते हैं। हम उसको आप पर ठीक-ठीक पढ़कर सुनाते हैं। व इन्नक लमिनल मुरसलीन, और आप नबियों में यानी आप रसूलों में से हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा जा रहा है कि आप रसूलों में से हैं। अब ये इसके अंदर एक दलील पेश की जा रही है, वो ये कि ये तमाम जो वाक़यात अभी बयान किए गए, ये तमाम वाक़यात का जो सही वर्ज़न है, जो एकदम सच्चा वर्ज़न है, वो अल्लाह ताला पेश कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ना कहीं जाकर के इसको हासिल कर रहे हैं, यानी आपने ना कोई तालीम हासिल की है, कहीं और से इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं और आस-पास भी कोई ऐसा नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता सकता है। तो ये वाक़या इतना ठीक-ठीक कौन बता सकता है? वो अल्लाह ताला ही बता रहे हैं। तो ये दलील है आपके रसूल होने की, व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और आप रसूलों में से हैं। यानी ये वाक़या कहीं और से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आया है और ये इस बात की दलील है कि आप रसूल में से हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो रसूल हैं, उनमें से अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है। यानी अल्लाह ताला ने कुछ रसूलों पे फ़ज़ीलत दी है, और जिन रसूलों लेकिन अल्लाह ताला ने बताया नहीं कि किस रसूल को किस रसूल पे फ़ज़ीलत दी है। तो इसलिए आपको ये अक़ीदा नहीं रख सकते कि फ़लाँ रसूल फ़लाँ से अफ़ज़ल है। अलबत्ता ये अक़ीदा हम रख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल जो हैं, वो सब रसूलों से अफ़ज़ल हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने फ़रमाया भी है, हदीसों में भी है, तो इसलिए ये अक़ीदा हम रख सकते हैं। अलबत्ता ये हम नहीं कह सकते कि कौन-सा रसूल किस रसूल से अफ़ज़ल है। और आगे अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि बाज़ रसूल ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम फ़रमाया है, बाज़ रसूल के दर्जात अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिए हैं। इसी तरीके से हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने खुली हुई निशानियाँ दी थीं, यानी हज़रत ईसा जो थे, वो मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर देते थे और अल्लाह ताला के हुक्म से जो मरीज़ होते थे, उनको शिफ़ा दे देते थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ईसा को रूहुल कुदुस से, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमने उनकी मदद की है। यानी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुँचाना शुरू किया, तो जो उस वक़्त के यहूदी थे, जो उस वक़्त वहाँ पे उस छोटे से इलाके के जो गवर्नर थे या काबिज़ जो थे किसी चीज़ पे, वो लोग हज़रत ईसा के मुखालिफ हो गए, उनकी जान जान के पीछे पड़ गए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहर से बाहर एक ऊँची मकाम, एक टीले पे चले गए और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी तायीद फ़रमाई। अल्लाह ताला फिर उसी मज़मून को दोबारा दोहरा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो जंग करवाते हैं, वो जंग किस नतीजे में होती है? इस नतीजे में होती है कि एक शख़्स हक़ पे होता है और एक शख़्स बातिल पे होता है। जो बातिल होता है वो ज़ुल्म कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला हक़ के ज़रिए बातिल को हटवाते हैं ताकि ज़मीन के फ़साद को ख़त्म कर दें। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहते, तो ये भी हो सकता था कि सब के सब हक़ पे हो जाते और सारे के सारे लोग जो हैं वो हक़ की इत्तिबा करते, तो ना उनके दरमियान इख्तिलाफ़ होता और ना वो आपस में लड़ते, ना ज़ुल्म होता, ना फ़साद होता। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, यानी अल्लाह ताला ने लोगों को इस तरह पैदा ही किया है कि उनके अंदर इख्तियार को पैदा किया है कि वो अ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हक़ को छोड़ देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातिल को अपना लेते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने लोगों को ऐसा पैदा किया ही है कि उनके अंदर दोनों तरह की सलाहियतें दी हैं,
تو اس کا طبعی نتیجہ یعنی اس کا تو نتیجہ ہونا ہی تھا کہ وہ حق اور باطل کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، اور لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو زبردستی سب کو حق پہ جما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ نہ لڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو حق پہ رکھ دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مخلوق بھی پیدا کرتے ہیں، یعنی جیسے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر باطل کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ صرف اور صرف حق پر رہتے ہیں۔ لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ جو اپنے دماغ کا استعمال کرتی ہے اور جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ اس کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم بعض کو بعض پر فضیلت، ہم نے جس میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، یعنی اللہ نے ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے۔ وہ آتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیوں سے نوازا، ہم نے ان کو کھلی ہوئی نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، یعنی روح القدس کے ذریعے ان کو ہم نے مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی جب یہ رسول آ گئے اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کے سب اس پیغام کو قبول کر کے سب کے سب حق پہ ہو جاتے، سب کے سب حق پہ ہو جاتے، تو کوئی جنگ نہ ہوتی، کوئی لڑائی نہ ہوتی، نہ ظلم ہوتا، نہ فساد ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتے تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، الذین من بعدہم، وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، ان کے پاس نشانیوں آ جانے کے بعد، ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ جانے کے بعد، مقتتل، یہ لوگ جنگ نہ کرتے، یہ لوگ لڑائی نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کے بعد والے نشانیوں کے آ جانے کے بعد لڑائی نہ کرتے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ تو یعنی ان کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس طرح سے پیدا ہی کیا کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے، اپنی سمجھ کو استعمال کر کے وہ ایمان لا سکتے ہیں، یا پھر وہ ان چیزوں کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ مجبور کر دیتے، سب کے سب حق پہ آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مَا اقْتَتَلُوا، یہ لوگ نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مخلوق پیدا کرنا تھا کہ جس کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں ہوں، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو بھیجیں اور ان پیغام کے ذریعے اللہ تعالیٰ حق پہنچائیں۔ تو جو شخص حق کو قبول کرے وہ ایمان والا ہو جائے گا، اور جو شخص حق کو نہ قبول کر کے اپنے ظلم پہ ڈٹا رہے، کفر کو اختیار کرے، تو اس کے نتیجے میں جنگ ہوتی، آپس میں لوگ لڑتے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں، دنیا آزمانے کی جگہ ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ اس میں یہاں پر فرما رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس سبق سے جو تعلق سے اس میں آیا ہے، ایک ایک جو مضمون ہے وہ ہے مال کے خرچ کرنے کا۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنگ کی بات کرتے ہیں، جہاد کی بات کرتے ہیں، تو ایک جان کی بات کرتے ہیں، یعنی لوگ جان سے کے جان چراتے ہیں، یعنی یہ جو سوچتے ہیں کہ موت آ جائے گی، تو اس مضمون کو بھی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ساتھ مال کے خرچ کرنے کا بھی جو مضمون بیان کرتے ہیں۔ تو شروع میں مال کے خرچ کرنے کا مضمون آ گیا تھا کہ جو کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دے۔ آگے آنے والی آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اسی مال سے متعلق جو ہے بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں گے۔
اور ایک مضمون اور بھی رہेगा جو ہے मौत का मज़मून है और इस बात का मज़मून है कि अल्लाह ताला कैसे लोगों को दोबारा ज़िंदा करते हैं। तो इसमें कुछ वाक़यात पेश करेंगे, लेकिन उसके बाद जो बुनियादी मौज़ू है वो माल के खर्च करने का ही मौज़ू है। यानी माल किस पे खर्च करना चाहिए और माल खर्च करने के बाद क्या रवैया होना चाहिए? कोई शख़्स माल जब खर्च कर रहा है तो उसका क्या तरीक़ा होना चाहिए? और फिर कौन-सा माल आप कमा सकते हैं, कौन-सा माल आप नहीं कमा सकते हैं और उसकी अल्लाह ताला उसमें लोगों की मिसाल पेश करेंगे। माल खर्च करने वाले की क्या क्या मिसालें हैं, उसकी क्या फ़ज़ीलत है, उसको पेश करेंगे अल्लाह ताला। और फिर आपस में माल चूँकि आदमी कमाने के लिए एक-दूसरे से मुआमलात करते हैं, तो उस मुआमलात का क्या तरीक़ा होना चाहिए, वो भी अल्लाह ताला फ़रमाएँगे। और फिर सूरत का जो आखिर है, उसके अंदर अल्लाह ताला ईमान ईमान जो मुफ़स्सल हमारा है, उसको बयान करेंगे आमन रसूल से और फिर ये सूरह बकरा वहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो यानी अब बुनियादी तौर पे जो माल का ही मौज़ू है, वो चलेगा अहकाम के तौर पे और कुछ जो है यानी मुर्दों को अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करते हैं, उसके मुताल्लिक अल्लाह ताला बयान फ़रमाएँगे आगे का। हमारा सबक आज यहीं पे पूरा होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।